इस लेसन में हम कंटेंट राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे विच इज़ द फीचर्स ऑफ एन आर्टिकल. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ द पार्ट्स दैट मेक अप अ स्टैंडर्ड नॉर्मल ब्लॉग आर्टिकल. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सारे फीचर्स आप एट अ टाइम एक आर्टिकल में यूज़ कर रहे हों, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गो ओवर ऑल ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स दैट यू आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस वाइल फ्रीलांसिंग एज अ कंटेंट राइटर. एंड ये फीचर्स मैंने इस वजह से हाईलाइट किए यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दिए because if ever a client approaches you for an article and he specifically requests you to add one of these features, so you will know what that feature is and why it is being used and how you will be using it in your article. And knowing these features will also help you to increase your expertise as a content writer, ताकि कल को अगर कोई client आपके पास आए तो आप उससे ये चीज़ें offer भी कर सकते हैं. So the client knows that you are an expert level content writer and he will trust your services more, and he might even pay you more for your services. So we will be looking at 9 important features that you're most likely to come across in a standard SEO blog article, which is the most common type of writing that you will be doing as a content writer. इस लेसन में मैं ए टू जी आपको एक आर्टिकल की आउटलाइन, उसकी आइडिएशन स्टेज से लेकर उसके एंडिंग, उसकी कंक्लूजन तक जो जो भी बीच में फीचर्स आ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी. बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारे फीचर्स अपने आर्टिकल में डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू माइट नॉट बी रिक्वायर्ड टू write a meta description or you might not need to do internal or external linking. लेकिन अगर आपका client मांग भी लेता है, so you'll be prepared to do these things. So the 9 parts of an article that we will be looking at are the outline. How do you start with the creative process of the ideation of the article? How do you make an outline? How do you come up with the structure of an article? Then there are the keywords or the key phrases that you might be adding. This is mainly for SEO purposes. The headings, obviously all of your articles will contain good headings. ये एक बहुत डिटेल्ड सेक्शन है जिसकी वजह से हम creating clickbait headings that people actually click on, इसके लिए एक अलग lesson dedicate करेंगे which will come after this lesson. Then there is a meta description. This will be optional. आपका client हर बार आपको नहीं कहेगा कि meta description add करें, but in case they do ask for it, you should know what it is. Then there's the intro of an article, which will always be there in all articles. Then the main body of your article, any lists or bullet points that you might be required to add, internal and external linking, and finally the conclusion. So we'll start with creating your outline. So why do you need to create an outline? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न एक आउटलाइन बनाने का होता है कि आप अगर एक क्लाइंट को अपना आर्टिकल आइडिया पिच कर रहे हैं, या इवन इफ़ यू लुकिंग टू गेट पब्लिश्ड इन अ पब्लिकेशन, तो आप सबसे पहले उसके एडिटर को रीच आउट करेंगे. तो वहाँ पे यू विल नीड टू हैव अ प्रॉपर वेल थॉट आउट आर्टिकल आउटलाइन, ताकि आप अपने क्लाइंट को या उस पब्लिकेशन के एडिटर को प्रपोज कर सकें कि मैं इस आर्टिकल में ये चीज़ें लिखूंगा. दीज आर ऑल ऑफ द talking points that I will cover in my article, and this is the value that you will gain through my article. Then apart from pitching your article outline as a proposal to your client, आपकी outline आपकी अपनी clarity के लिए भी बहुत important होती है, because it will help you save a lot of time when you actually sit down to write the article. अगर आपने पहले से ही सोचा हुआ होगा कि मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल लिखूंगा. रिमेंबर, लाइक आई मेंशन बिफोर, योर रिसर्च विल हेल्प यू क्रिएट योर आउटलाइन, एंड वंस यू आर डन विद दैट स्टेप, बाद में जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि आपकी क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा कि मैंने एक एक सेक्शन को किस ऑर्डर में लिखना है, एक एक सेक्शन में क्या डालना है, एंड इन सम केसेस यू विल इवन नो हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट टू राइट पर सेक्शन. सो दैट विल रियली help you organize your writing. Decide your article structure and direction. Again, with your article outline, you will be able to brainstorm different ideas, different directions that you want to take in your article, and you will be able to decide कि आपके आर्टिकल की थीम के अकॉर्डिंग बेस्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है आर्टिकल की. सो यू आर सेविंग टाइम ओवर हियर, बिकॉज इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग हाफ वे थ्रू राइटिंग एन आर्टिकल कि अच्छा मैं शायद एक डिफरेंट डायरेक्शन ले लेता, आप आउटलाइन स्टेज में ही अपनी डायरेक्शन को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं and you're deciding कि आपने क्या approach लेना है towards the topic. So again, you'll be saving your time. You won't be wasting any time later on when you write the article, because it's easier to change your direction and come up with new ideas within your ideation phase.
जहाँ पे आप अपनी आउटलाइन क्रिएट कर रहे होंगे. सो येस, द बिगेस्ट वाई ऑफ क्रिएटिंग एन आउटलाइन, द बिगेस्ट रीजन दैट यू शुड क्रिएट एन आउटलाइन मेनली इज टू सेव योर टाइम while actually writing your article. सो नाउ हाउ डू यू क्रिएट एन आउटलाइन. ये चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, इसको आप अपने सामने रखें वाइल क्रिएटिंग योर आउटलाइंस फॉर योर आर्टिकल्स, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज आप अपनी आउटलाइन में मेनली ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. एन आउटलाइन वुड बी इनकम्प्लीट इफ यू मिस आउट एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेयर आर टू गिव यू क्लैरिटी अबाउट योर ओन आर्टिकल आइडिया. सो इट्स बेटर कि आप इसी स्टेज में ये सारी चीज़ों को इसी वक्त डिफाइन कर लें ताकि आगे जाके आपको मुश्किल ना आए. सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर आर्टिकल. सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आर्टिकल का पर्पज़ क्या है, आप किस वजह से आर्टिकल लिख रहे हैं. देन हु इज़ योर ऑडियंस, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. व्हाट आर द डेमोग्राफिक्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, वो कहाँ रहते हैं, आर द विमेन, आर द मैन, व्हाट इज़ द एज ग्रुप. ये चीज़ आपको पता होगी तो यू विल बी बेटर एबल टू डिफाइन योर राइटिंग टोन, कि आपने किस तरह का writing voice adopt करना है to talk to your audience, because you really need to adopt a relevant writing style that really helps you speak to your audience and connect with them. Then what are the keywords or the supporting keywords that you will be using. ये mainly if you're not an SEO writer तो आपका client आपको probably keywords या supporting keywords की list पहले से ही दे देगा. So it's still good if you mention that within your outline. And even अगर आपके client ने नहीं दिया तो you should compile some words that are relevant to योर टॉपिक, ताकि आपको पता हो कि आपका टॉपिक मेनली इस वर्ड के बारे में या इस फ्रेज के बारे में है, इसको टारगेट कर रहा है, इस नीश में, इस कैटेगरी के बारे में है. सो इट्स गुड टू जॉट दीज डाउन. देन योर वर्ड काउंट, द ओवरऑल वर्ड काउंट दैट इज गिवन टू यू बाय योर क्लाइंट, or if the client has given you the liberty to come up with a relevant word count, then it's still good कि आप at least by the end of your outline you have a rough idea of how many words would be relevant to cover your article idea. Then comes the title. ये आप शायद brainstorm कर रहे हैं, आप शायद as you write the article you might want to change your title, you might want to make it more intriguing, more captivating as you go. शायद आपको बाद में ideas आए, तो keep your options open for the title, especially at this stage, and try coming up with 5 options for the title if you're pitching to your client, ताकि he has some options to choose from. फिर सब टाइटल आता है. द सब टाइटल इज बेसिकली अ वन सेंटेंस summary of what you will be covering in your article, and it's very important especially for the readers, because you want to tell them right here in the subtitle के what can they expect to read in the article. इसमें आपने बहुत concisely अपने readers को बताना है कि इस article में उन्हें क्या मिलेगा. Then comes the hook. What tools, what methods, what writing techniques, what words or phrases are you going to use to hook your readers into your article, and the earlier you use these hooks within your article the better. तो hooks हम कहते हैं basically whatever things can reel a reader into your article. So it can be a question, it can be a situation, it can be a quote, basically anything that really compels the reader to come to your article, to open it, to click on it and read through. एंड अगर आपके आउटलाइन फेज में ही आप अपने हुक्स भी डिसाइड कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू अगेन सेव टाइम लेटर ऑन, बिकॉज यू विल बी सेव फ्रॉम हैविंग टू थिंक अबाउट कि अच्छा अब मैं क्या हुक डालूँ ताकि मेरे रीडर्स और इंट्रीग हों. अगर आप पहले से ये सोच लेंगे, पहले से ही अपनी आउटलाइन में डाल लेंगे, तो यू विल नो कि आपने क्या हुक्स डालने हैं एंड एग्जैक्टली किस जगह में ये हुक्स डालने हैं. देन योर रेफरेंस साइज. जब आप रिसर्च करेंगे सो यू विल कम अप विद अ बंच ऑफ websites, a bunch of resources that you will use as reference for the information that you put in your articles. तो ये reference sites को भी इसकी links को पहले से ही compile कर लें, पहले से ही shortlist कर लें, ताकि later on आपको पता हो कि आपने किन sites से अपनी information extract करनी है. Then the list of contents along with the word counts. अब आपके आर्टिकल का मेन स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें इंट्रो के बाद वाले सेक्शन में क्या आएगा, व्हाट विल द सब सेक्शन बी, व्हाट विल द सब सेक्शन बी कॉल्ड, उसका सब टाइटल क्या होगा, एक एक सब सेक्शन में आप क्या डालेंगे. यू विल क्रिएट दिस आउटलाइन बेस्ड ऑन योर रिसर्च, क्योंकि आपकी रिसर्च के बाद ही आपको पता होगा कि एक टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं एंड हाउ कैन यू बेस्ट स्ट्रक्चर देम फॉर योर आर्टिकल. एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप सिर्फ सब सेक्शन, सिर्फ सब टाइटल्स को लिस्ट डाउन ना करें अपनी आउटलाइन में, बल्कि एक एक सब टाइटल के अंदर जो 2-3 टॉकिंग पॉइंट्स आप यूज़ करेंगे to discuss the idea that you have introduced in that subsection, तो उनको भी list down कर लें ताकि you don't miss anything out and you know कि मैंने इस subsection में
इन टॉकिंग पॉइंट्स को डिस्कस करना है. एंड अनदर थिंग दैट यू शुड डू एट दिस स्टेज इसके एक एक सब सेक्शन के आगे उसके अप्रॉक्सीमेट वर्ड काउंट्स भी लिख लें, ताकि आपको एक रफ आइडिया ही हो जाए कि आपके इस पॉइंट पे कितने वर्ड्स लगेंगे, फिर अगले सब सेक्शन पे कितने वर्ड्स लगेंगे. सो दिस विल हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर वर्ड काउंट एज वेल. Then any bullet points or listicles, any lists that you might want to add within your article. अगर आपके टॉपिक से relevant कोई lists बनती हैं, for example 7 ways to improve your writing style, so 7 different ways होंगी, 7 different points होंगे, so you can turn that article into a list article जिसमें आप 1 to 7 points की list लिख रहे हो. On the other hand, अगर किसी article के एक part में एक लिस्ट बनती है, जैसे मे बी यू आर राइटिंग अबाउट व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, सो दिस वोंट बी एन एंटायरली लिस्ट फॉर्म आर्टिकल, बट अगर इसके एक पार्ट में 5 मार्केटिंग टूल्स इस तरह का सेक्शन आता है, सो यू विल नो इन योर आउटलाइन के मैं ये मार्केटिंग टूल्स को एक लिस्ट फॉर्म में विद इन दी आर्टिकल डाल सकता हूँ. सो इट्स बेटर इफ़ यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर हैंड बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकल. फिर आपका कंक्लूजन. In the outline you should be able to decide कि what final thoughts do you want your audience to leave with. तो इसमें अगर आपने कोई call to action डालना है, if it's applicable, तो be sure to mention that within your outline. The next feature that we're going to cover is the keywords. Now this is more important for SEO, but recently इसका ज़्यादा ट्रेंड हो गया है and your clients are more likely to ask you to use keywords in the articles because that is how they will get the most value out of it, because once वो article उनकी website पे publish होंगे, so their main aim is definitely going to be to rank on Google. And there are mainly 3 types of keywords. So there is the primary keyword which is the main focus of your article. ये सिर्फ एक keyword होगा जिस पे आपके client ने rank करना है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डॉग ब्रीड के बारे में लिख रहे हैं, लेट्स से लैब्राडोर डॉग्स के बारे में लिख रहे हैं, सो योर कीवर्ड विल बी लैब्राडोर्स. दिस इज द मेन कीवर्ड दैट योर आर्टिकल इज अबाउट. देन देयर इज अ सेकेंडरी कीवर्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड होता है. दिस इज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ योर प्राइमरी कीवर्ड. जैसे अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड लैब्राडोर था, तो मे बी योर सेकेंडरी कीवर्ड कैन बी लैब्राडोर डॉग ब्रीड और लैब्राडोर पेट्स और लैब्राडोर डॉग. तो इस तरह की वेरिएशंस होती हैं ऑफ द प्राइमरी कीवर्ड एंड ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं. दे कैन बी अबाउट 2 to 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स. Then there are additional keywords. Now these are long tail keywords या phrases. These are a group of words that can contain your keywords but they're mainly related to your primary keyword. और ये जो phrases होंगे वो आप बहुत subtle तरीके से indirectly, ताकि रीडर को पता भी ना चले, अपने sentences में डाल रहे होंगे. So in this case maybe your long tail key phrase could be feeding a Labrador, because this might be a phrase जो Google users ने काफ़ी frequently search किया हो on Google. So your client might say कि this is a key phrase that I want you to use within your article. So how many keywords do you have to use? Now this is mainly based on the length of your content. आपका जो primary keyword होता है वो approximately you should use it after every 100 to 150 words. इससे ज़्यादा frequently ना use कीजिएगा because that would count as keyword stuffing. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, दिस वुड मीन कि आप 7 to 10 टाइम्स अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं. सो अगर आपके क्लाइंट ने आपसे एक प्रॉपर एसईओ आर्टिकल लिखवाना है, सो टिपिकली यू विल हैव 1 मेन प्राइमरी कीवर्ड, 1 to 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स एंड अबाउट 1 to 4 एडिशनल कीवर्ड्स. मेन जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ऑलमोस्ट हमेशा आपको क्लाइंट देगा. बाकी चीज़ें क्लाइंट की मर्जी है, वो शायद दे सकता है, शायद नहीं दे सकता. यू कैन आस्क हिम फॉर इट एंड डिस्कस दीज थिंग्स विद हिम. बट एज अ लिमिट डू नॉट यूज़ मोर दैन 8 डिफरेंट कीवर्ड्स. सो अगर आपके क्लाइंट ने आपको 10 कीवर्ड्स की लिस्ट दे दी है और उसने कह दिया है कि ये सारे कीवर्ड्स आपने आर्टिकल में यूज़ करने हैं, सो बी श्योर टू टेल हिम कि दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग फॉर गूगल एंड दैट वुड एक्चुअली बी काउंटर प्रोडक्टिव. वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा. So don't try to rank your article on more than 8 different keywords. Then आपका primary keyword जो है वो सबसे ज़्यादा times use होना चाहिए. The secondary and additional keywords should be used lesser times than your primary keyword. So where do you use keywords? अब keywords आप throughout your article use करेंगे. You'll use them in your main heading एक बार.
यू विल यूज़ देम इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन. मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसमें आप अपना मेन कीवर्ड या अपने सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. Then be sure to use it within the first line of the paragraph. This is very good for Google. अगर आप अपना मेन कीवर्ड अपनी पहली लाइन में यूज़ कर रहे हैं या अगर पहली लाइन में वो फिट नहीं होता है तो एटलीस्ट विद इन द फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ यूज़ कर लें अपना मेन कीवर्ड. आपका जो सेकेंडरी कीवर्ड है दैट शुड ऑल्सो बी यूज विद इन the first 200 words of your article, and your primary and secondary keywords should both also be used in the last 200 words of your article. जब आप आर्टिकल कंक्लूड कर रहे होंगे, अपना कंक्लूजन लिख रहे होंगे, so don't forget to use the primary and the secondary keyword over here. आपके आर्टिकल में अगर सब टाइटल्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, तो उसमें भी अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे सो दैट विल बी रियली गुड फॉर योर एसईओ पर्पसेस. एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो यूज़ योर कीवर्ड इन दी एंकर टेक्स्ट लिंक. इस पर भी हम बात करेंगे. बेसिकली दिस मीन्स कि अगर आपने कोई लिंक्स डाले हुए हैं अपने आर्टिकल में, कोई हाइपर लिंक किया हुआ है किसी टेक्स्ट को, तो उस टेक्स्ट में भी अगर कीवर्ड यूज़ हो जाता है सो दैट माइट ऑल्सो हेल्प यू.